जस्ट हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग Ma'am, स्टार्ट करते हैं। हाँ ma'am, विशाल। can I use for in my URL like photo retouching, diamond retouching for e-commerce? Preposition can I use in there in my URL? हाँ, फॉर योर वेबसाइट यूआरएल ना, यू आर सेइंग? Yeah, yeah, ma'am. यस यू कैन। यस, फोटो टचिंग एंड अदर ना, इमेज जो आपके वेबसाइट में है, इमेज एडिटिंग का जो है, यू Yeah, ma'am. कैन यूज दैट preposition words in your URL. I want to ask you like preposition for. Can I use it in my URL like diamond retouching for e-commerce? This is the for preposition. Can I use it in URL? For e-commerce, in the URL is not accurate, but diamond retouching or image editing, these kind of words or terms you can use in your URL. For e-commerce, though, means it's weird in the URL. Yeah, ma'am. So you can use diamond retouching या फिर image recognition या photo editing. These type of keywords you can use into your URL. Oh, okay, ma'am. But never use like this कि diamond retouching for e-commerce. For e-commerce, no, don't use that kind of thing. Just use diamond retouching or whatever the keywords into your website or web pages. That type of keywords you can use into your URL. Actually, I write a content. I write blog in Hmm. form, and the blog name is Boost Your E-commerce Sales with Diamond Photo Retouching. Boost And your e-commerce sales for diamond retouching. this is the title of my blog, Blog. Huh. and please suggest me the URL for this blog. This is the main means H1 into your website. Yeah, ma'am. Boost your e-commerce sales with Diamond Photo Retouching. Okay, okay. Then you can use. I thought ki you want to recreate your URL. That's why you are saying, can I add for you e-commerce? If your page name is boost your e-commerce for diamond retouching, then you can use that URL. I thought you want to improvise your URL or you want to change your URL. So at that time you can use the e-commerce retouching wala URL you can use. Uh, then what will be the URL is the best for this content? The H1 tag, what is your H1 tag for that blog? Boost your e-commerce sales with Huh, Diamond that Photo Retouching. that was your main URL. Uh, Total boost. Total. Yes. Boost your It is e-commerce in diamond retouching. boost your e-commerce and Diamond Retouching. That complete your URL with hyphens. Boost your e-commerce and Diamond Retouching. Boost, then hyphen, Um, e-commerce hyphen, then retouching. Means na we will denote our URL with hyphens. So use hyphens and you can create the. Because why I'm saying this now, your blog H1 tag is boost your e-commerce for diamond retouching. If you create your URL with the same name, then might be possible your blog will also help in ranking perspective. oh yeah, I have also a complete guide for retouching after pendant photography. What will be the URL for this title? What? Absolute? I send it to you. 1 second. A complete guideline for the retouching after pendant photography. No, no, no. This is a huge URL. Uh, just put your URL like this: guideline for retouching pendant photography. Guideline Gu- for retouching pendant photography. Guideline For for retouching. retouching pendant photography. Uh, okay. Because a complete guideline, it's a huge URL. So guideline retouching for pendant photography. Or the second URL you can also take guideline. No, guideline for pendant photography. No. This is the correct URL. Guideline for retouching pendant photography. Guideline for retouching pendant photography. हाँ. I use here URL টা কি যেন ব্যবহার করছিলাম আমি জানো তো
এটার কি ইউআরএল ব্যবহার করছিলাম? না না, ওই ইউআরএল টা দিয়ে দিলাম রে ভাইয়া। अरे। ओके, मंजू भी आ गई, हर्षिता एंड पंकज। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट हम शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? मंजू, हर्षिता, विशाल, पंकज। यस मैम। ओके, ग्रेट। फर्स्ट सेक्शन आपका गूगल एड्स का। आई एम सो सॉरी, एड एक्सटेंशन बेसिक। ठीक है, सारा गूगल एड्स का है। ग्रेट। विशाल, हम लोग स्टार्ट करें सेशन? ओके मैम, यू कैन स्टार्ट मैम। ओके, सो ठीक है। देखिए, आज का अपना टॉपिक गूगल एड्स का जस्ट थियोरेटिकल है, और कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट आप में से किसी एक या पर्सन का अकाउंट क्रिएशन कर ले। लास्ट क्लास में विशाल ने काफी हेल्प करवाया था, विशाल, हर्षिता और हम लोग थे। बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि आज भी हम लोग अपना अकाउंट क्रिएशन कर ले। इन केस अगर किसी का नहीं होता है, तो डमी अकाउंट क्रिएशन से हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव से। बाद में आप उनको आफ्टर क्लास या आप आफ्टर कोर्स कंप्लीशन के बाद उनको रिमूव भी कर दोगे तो चलेगा, बट हाँ, ये हम लोग कर लेते हैं। बट उससे पहले हम लोग थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग मिले तो हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, टेक्निकली गूगल एड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने फेसबुक के बारे में सीखा, लिंक्डइन के बारे में सीखा, एज वेल एज हम लोग फेसबुक के साथ हम लोग इंस्टाग्राम एड्स के बारे में भी सीखे यहाँ पे। ठीक है, कि एड्स कैसे बिल्डअप की जाती है। अभी गूगल एड्स के बारे में जानेंगे। हमेशा एक चीज प्लीज याद रखिएगा। आप जब भी गूगल एड्स या गूगल किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट अपना गूगल एड्स पे बनाया, आपने अकाउंट अपना गूगल सर्च कंसोल पे बनाया, आपने अकाउंट अपना गूगल एनालिटिक्स पे बनाया, या रेस्ट किसी भी गूगल डैशबोर्ड पे आपने अपना अकाउंट बनाया, ट्राई करिए एक ऑफिशियल जीमेल आईडी पुट करने का। और जितने भी गूगल अकाउंट्स है ना, उन पे आप अपना सेम जीमेल आईडी यूज करो। क्यों? उसका रीजन है, बिकॉज कनेक्टिविटी में इजी आ जाता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन फ्यूचर गूगल सर्च कंसोल को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करना है, या गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड से, या एक्सवाइज़ेड किसी भी चीज को किसी से कनेक्ट करना है ना, तो वो इजीनेस रहता है जब आपकी जीमेल आईडी क्या होती है, सेम होती है, सेम प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है। जैसे फेसबुक पे था कि मेटा के आपके 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। ठीक है। तो जब भी आप अपना फेसबुक पे ऐड बनाते हो, तो आपका इंस्टाग्राम पे भी सेम प्लेटफॉर्म से ऐड रन होता है, विच इज योर मेटा। तो जब आप फेसबुक पे जिस जीमेल आईडी से अपना अकाउंट अकाउंट क्रिएट करते हैं, अगर आप उसी से इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो कनेक्टिविटी जो होती है एड्स रन करने के लिए, वो आपके लिए इजी हो जाती है। ये किसी भी चीज के लिए भी, नॉट स्पेशली कि आप इसी के लिए वर्क करो, बट ये हर चीज के लिए आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा इस जगह पे। अब गूगल एड्स टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ गूगल एड्स कि आप लोकल एसईओ पे भी रन कर सकते हो, एंड आप गूगल मैप में भी आपके एड्स आते, मतलब लोकल एसईओ के ही अंदर ही आपके एड्स आते हैं। देन आपके गूगल पे एड्स आते हैं, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं इसके अंदर। प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे भी गूगल ही आपके एड्स को रन करता है। ठीक है। यूट्यूब हो गया, देन जीमेल हो गया, ये सारी जगहों पे गूगल के थ्रू ही आपकी एड्स रन होती हैं। अब बात ये आती है कि गूगल एड्स कैसे, यहाँ जो हम लोग सीखेंगे कौन से, हम लोग यहाँ पे 2 टाइप ऑफ गूगल एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मार्केट में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट इज योर यूट्यूब एड, सेकेंड इज योर सर्च इंजन मार्केटिंग एड। ठीक है। पहला आपका यूट्यूब एड है, सेकंड आपका सर्च इंजन मार्केटिंग एड है। हमेशा याद रखिएगा, डैशबोर्ड्स और उनके इंटरफेसेस चेंज हो सकते हैं, बट जो पैटर्न्स हैं कि डेमोग्राफिक्स, लोकेशंस, डिटेल टारगेटिंग, अपनी ऑडियंसेस या एड्स क्रिएटिविटी, ये हर में कॉमन रहती है। अगर हम लोग एग्जांपल लें, जो आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड रन किया, अगर आप लिंक्डइन पे भी ऑब्जर्व किए होंगे, इंटरफेस चेंज था, डैशबोर्ड उसका मतलब चेंज था, बट जो प्रोसीजर था इक्वली था। बजट लेना,
इट्स नॉर्मल। टू टाइप ऑफ बजट जो फेसबुक में थी वही आपकी लिंक्डइन में भी थी। सेम आपको लोकेशन लेना है, अगर किसी को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, वो सब आप अपना सेलेक्ट कर सकते थे जैसे कि आपने वहां पे किया। एज वेल एज आप जब यहाँ पे भी रन करोगे तो वैसा ही आपका डैशबोर्ड रहेगा, सॉरी पैटर्न्स रहेंगे या स्टेप्स रहेंगे। माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे डैशबोर्ड आपका यहाँ पे भी चेंज रहेगा। ठीक है। अब दो एड के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज अ सर्च इंजन मार्केटिंग एड, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा ह्यूज और डिमांडिंग रहता है फॉर द जॉब प्रोस्पेक्टिव के लिए। एंड सेकंड इज योर यूट्यूब एड। यूट्यूब पे जो आपको वो स्किप्स वाली एड मिलती है ना, जहाँ पे फ्यू सेकंड्स बाद स्किप एड का एक ऑप्शन आने लगता है, तो वो वाली एड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एड्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं अम, मैंने थोड़ा सा टर्म इसलिए अलग लिया है ना, उसका भी एक रीजन है। ठीक है। जब भी आप कोई चीजों को सर्च करते हो ऑन योर क्रोम और गूगल, तो आपकी ना हिस्ट्री बिल्डअप होने लगती है। ठीक है। हिस्ट्री क्या होती है, क्रिएट होने लगती है कि आज आपने क्या किया, यस्टरडे क्या था, या फिर नहीं होता डे बिफोर यस्टरडे, या फिर किस दिन पे आपने कौन से सर्चेस किया, आपकी हिस्ट्री बिल्डअप होने लगती है। तो उससे क्या होता है ना, गूगल के पास भी आपके डेटा क्या होते हैं, स्टोर्स होते रहते हैं। ठीक। अब जैसे कि अगर आप मेरे यहाँ पे रिजल्ट्स में देखोगे, मोस्टली आपको डिजिटल मार्केटिंग एंड मतलब फर्दर उसी के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है। तो अब मुझे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ना, मुझे यहाँ पे ऐड दिखने के चांसेस जो हो जाएंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेसिव सर्चेस कर दिए हैं। ठीक। कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक। क्योंकि एक्सेसिव सर्चेस हो चुके हैं। ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों नहीं दिखते हैं, एक्सेसिव सर्चेस से ऐड पे क्या इम्पैक्ट बैठता है उसके बारे में भी। बट हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़े कीवर्ड अपने क्या कर दिए इस बार, चेंज कर दिए। अब सी, ये आपकी क्या होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग एड कहलाती है। ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग एड। बिकॉज गूगल क्या है आपका, सर्च इंजन, और ये क्या है आपका, मार्केटिंग हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज सर्च इंजन मार्केटिंग एड। और इन अनदर टर्म आप इसको पीपीसी भी कहते हैं, मतलब पे पर क्लिक। और सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। पीपीसी एंड सीपीसी बोथ आर सेम। पे पर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक, मतलब जितनी बार भी आपके इस एड पे कोई भी पर्सन क्लिक करेगा, उतनी बार जिसने भी ये एडवर्टाइजर ने एड बनाई है उसको गूगल को एक बिड देनी पड़ती है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड पीपीसी, पे पर क्लिक। मल्टीपल टाइम्स आप क्लिक करोगे तो उस पे क्या होगा, पैसे डिडक्ट होते रहते हैं वहां से। अब ये जो एड है, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी किस पे है, ये एड की विजिबिलिटी हम लोगों को कैसे शो हो रही है, बताइए। मंजू, विशाल, पंकज, हर्षिता। Ma'am, can you ask me the question हाँ, again? ये जो एड है ना विशाल, स्पॉन्सर्ड एड्स, इसकी विजिबिलिटी जो है ना वो कैसे हम लोगों को इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो हो रही है। बहुत कॉमन आंसर है। Through the SEO, नो, एसईओ से कोई advertising, रिलेशन नहीं है, advertising, कोई। madam, advertising, through the advertising. एडवर्टाइजिंग, दिस इज एडवर्टाइजिंग, बट इसकी एड विजिबिलिटी किसी पे डिपेंडेंसी रोल तो प्ले कर रही होगी ना। दैट्स वाई हम लोगों को ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे ये शो हो रहा है। कीवर्ड्स पे इसकी लाइबिलिटी होती है। बिकॉज जब आपके कीवर्ड्स चेंज होते हैं आपके एड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो आपका एड हो, हम अब एक चीज और याद रखिएगा, कीवर्ड्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, कितने टर्म्स जो होते हैं जो कीवर्ड्स पे अपने आप को डिपेंड रखते हैं। आपका एसईओ, एसईओ क्या है, कीवर्ड्स पे। हम लोग क्यों एसईओ पे कीवर्ड्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहते हैं, बिकॉज जितना अट्रैक्टिव प्राइमरी कीवर्ड्स आप यूज करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेम एज आपका ये सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसे एडवर्टाइजिंग भी आप कहते थे हैं।
SEM, ये भी कीवर्ड्स पे ही क्या कर रहा है, अपनी विजिबिलिटी शो कर रहा है, एज वेल एज आपका लोकल SEO। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपको अपनी कीवर्ड, जब आप टर्म्स यूज करते हो, कैसे नियर मी, नियर बाय, इस तरह के टर्म्स जब आप यूज करते हो, नेविगेशनल काइंड ऑफ कीवर्ड जब आप यूज करते हो, तो आपको आपके रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो SEO से कोई रिलेशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट का, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, और ये भी आपका सेपरेट है। ठीक है, तो आपके कीवर्ड किस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करते हैं, आप सॉरी, आपकी एड्स किस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है, आपके कीवर्ड्स पे। तो यहाँ पे भी हम लोग जितना सही कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं अपनी एड के लिए, उतना ही बेस्ट कीवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, A to Z अभी तक में? यस मैम। ओके, अब जो ये आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, ये जो आपके सामने स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो आपका है, ये डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से टर्म्स को इंक्लूड करता है? आपके सामने ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ना, जिसको हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, जिसे सर्च कहते हैं हम लोग, तो ये कौन कौन से टर्म्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है इस पेज पे? अभी इसका आंसर मैंने दिया था। जब भी आप कीवर्ड्स पुट करते हो और सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे जाते हो, आपको तीन ही चीज इस पे दिख सकती हैं। फर्स्ट इज योर SEO, सेकंड इज योर SEM, एंड थर्ड इज योर लोकल SEO। ये तीनों चीजें जो होती हैं आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे दिखाई देती हैं। ठीक है, और ये तीनों किस पे अपना डिपेंडेंसी रोल प्ले करते हैं, आपके कीवर्ड्स पे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी किसी नो को? मैम। ठीक है, अब एक और चीज है। Please tell me हाँ, about SEM. SEM इज दिस, सर्च इंजन मार्केटिंग, दिस इज योर SEM ad, this is sponsored ad is known as search engine marketing ad or Google ad or PPC ad, pay per click ad। ठीक है विशाल? Okay, ma'am. Okay, so see, this is your SEM, this is your still this is, see, this is your SEO, and local SEO आपको पता ही है कि this is your local SEO। ठीक है, अब एक और चीज, इट्स नॉट मैंडेटरी कि फर्स्ट नंबर पे हमेशा आपका एडवर्टाइजमेंट ही शो हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका पहले नंबर पे क्या हो, एडवर्टाइजमेंट ही शो हो सकता है, ये आपके, देखिए, अब एक और चीज है, ये पर्सन टू पर्सन सर्चेस पे डिपेंड करता है। माइट बी कि मेरे रिजल्ट में आज 2 BHK फ्लैट फॉर सेल इन पुणे में अभी शो कर रहा है, मे बी अगर कल हम सर्च करें मुझे नहीं शो करेगा। बेबी मेरी जो सर्च, जो मैंने बोला ना कि सर्चेस जब आपकी एक्सीड कर जाती हैं, ठीक है, जब आपकी सर्चेस जो होती है ना एक्सीड कर जाती है ना, तो गूगल क्या करता है, एडवर्टाइजर का पैसा खर्च नहीं करवाता, अननेसेसरली जो बोलते हैं ना, बजट को वेस्ट नहीं करवाता गूगल। तो वो उस पर्सन के उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे क्या करता है, वो एड दिखाना बंद कर देता है, अनटिल और अनलेस आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट ना कर दो, वैनिश ना कर दो। ठीक है, अब ये क्यों करता है और गूगल को कैसे पता? पहली बात, हिस्ट्री के थ्रू उसको डेटा मिल जाता है। दूसरी चीज, क्यों नहीं दिखाता, आपने ना क्लिक किया है ना कुछ किया है, बट स्टिल वो आपको ऐड नहीं दिखा रहा, तो वो होता है आपका इम्प्रेशन। क्योंकि इम्प्रेशन जो होती है एक मोस्ट कॉस्टली बिडिंग होती है। ठीक है, आप भले ही इस एड पे क्लिक ना कर रहे हो, बट जब भी आप इस कीवर्ड या इससे रिलेटेबल कीवर्ड्स पे आप आ रहे हो और आपको ये सेम पर्सन या सेम बोल सकते हो एड दिखाई दे रही है इसकी, तो आप भले ही क्लिक ना करो, बट आप इसका इंप्रेशन क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर इंप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो भी एड विजिबिलिटी उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे नहीं दिखती है आपको।
समझ में आया? नहीं तो हम रिपीट करते हैं इस चीज को। विशाल, हर्षिता, मंजू, Yes, ma'am. पंकज। Just एक repeat. एक बार रिपीट कर दीजिए मैम प्लीज। हम्म। हाँ। ठीक है, हम रिपीट करते हैं। बोला देखिए, ना। आपकी दो चीजें होती हैं, एक क्लिक होती है, एक इम्प्रेशन होता है। ठीक, जैसे कि मैंने कहा आपके इस एड के ना थ्री नेम्स हैं। एक है आपका SEM, एक है आपका PPC जिसे पे पर क्लिक कहते हैं, एक है आपका CPC। ठीक, ये तीनों अपना डिपेंडेंसी रोल किस पे प्ले करते हैं? कीवर्ड पे करते हैं। कट टू क्लियर, ये इजी वाला था। अब मानिए कि कोई भी पर्सन XYZ इस कीवर्ड को बहुत एग्रेसिवली सर्च कर रहा है, 2 BHK फ्लैट, उसको रिक्वायरमेंट है इसलिए वो सर्च कर रहा है। 2 BHK फ्लैट नियर मी, 2 BHK फ्लैट फॉर सेल इन पुणे, या XYZ जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर रीसेल प्रॉपर्टी फॉर 2 BHK फ्लैट, इस तरह कीवर्ड्स को वो यूज कर रहा है। और उसको ये एड जो है सेम जो आपके सामने है, ये क्या कर रही है? अपनी विजिबिलिटी शो कर रही है बार बार, भले वो टू जो भी कीवर्ड्स को यूज कर रहा है। लेट कंसिडर, ठीक। तो हिस्ट्री में आपका सारा डेटा तो स्टोर हो जाता है कि आपने आज कौन सा किया, या आपने कल कौन सा किया था, या डे बिफोर यस्टरडे आपने कौन सा किया था। आपके पास सारी हिस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, जो गूगल स्टोर करते चलता है। तो अगर आप हिस्ट्री को डिलीट नहीं करते तो वो स्टोर्ड है, तो उससे गूगल को क्या मिलता है? एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इस तरह के कीवर्ड्स पे ज्यादा सर्चेस कर रहा है, और एड्स पे तो क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है, बट उसके इंप्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करता है? इंप्रेशन एक बहुत कॉस्टली बिडिंग हो जाती है। तो इसलिए कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जब तक आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर देते हो, तब तक वो क्या करता है? इस एड की विजिबिलिटी आपको नहीं शो करता। मे बी आफ्टर सर्टेन पीरियड टाइम बाद, या फिर नेक्स्ट मंथ में, जब आपके ये सर्चेस थोड़े से लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वापस से आपकी एड विजिबिलिटी वहां पे दिखने लगती है। लेकिन ये पूरा ऑप्टिमाइज होता है, ये टोटली आपके हाथ में नहीं होता, ये टोटली गूगल के हाथ में होता है। समझ में आया? मंजू, पंकज, विशाल, हर्षिता, वापस से। यस यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? कुछ भी ऐसा डाउट या कुछ भी? Ma'am, CPC stands for. CPC कॉस्ट पर क्लिक। Okay, ma'am. कॉस्ट पर क्लिक एंड पे पर क्लिक बोथ आर सेम। मींस जब भी आप इस एड पे क्लिक करोगे ना, तो एक मल्टीपल कह रहे, एक सर्टेन अमाउंट होता है, मे बी वो 10 रुपीज हो सकता है, 12 रुपीज हो सकता है, डिपेंड कि आपका बजट कैसा है, तो वो एक डिडक्ट होता है। आप कह सकते हैं टर्म्स बिडिंग। Okay, ma'am. ओके, तो ये आपका मे बी जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों PPC इसको बोलते हैं, CPC क्यों बोलते हैं इसको। लेकिन हाँ, इसे हम लोग क्या करते हैं? SCM कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग ऐड कहते हैं। अब अ, अब आपका आता है यूट्यूब। अब जैसे लेट कंसिडर एक और भी चीज आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ इन पुणे सर्च करते हैं, सी, मुझे एड विजिबिलिटी इस कीवर्ड पे बहुत कम देखने को मिलेगी, या मे बी मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि मेरे सर्चेस बहुत क्या हो चुके हैं? एक्सीड कर चुके हैं। इधर हम अपने हिस्ट्रीज को डिलीट कर दें, और या फिर हम, इसलिए मैंने क्या किया था, मुझे पता था मुझे इस पे नहीं दिखने वाला ऐड, तो मैंने इस टर्म का यूज किया था। अब अगर हम इसको बार बार इसी चीज को अगर यूज करने लगे, तो मुझे इस कीवर्ड पे भी ऐड दिखना बंद हो जाएगा। अब एक और चीज, थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे हैं, मतलब आगे हम आपको इसको बताएंगे भी, बट थोड़ा सा मतलब और इन डेप्थ इसमें जा रहे हैं। हमारे सर्च इंटेंट होते थे उसमें क्या बोलते हैं, SEO में, याद है आपको 4 सर्च इंटेंट कौन से थे? नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कॉमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, इस टाइप के सर्च इंटेंट थे ना अपने, यूजर इंटेंट कीवर्ड जिसे कहते हैं SEO में, ठीक है। वैसे ही आपके गूगल एड्स में भी आपके क्या होते हैं? गूगल की क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैच टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये आपके होते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड नेगेटिव मैच, ठीक है। अब
जब आप अपना एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे थे, तो अगर आपको कीवर्ड के टाइम पे याद हो, मैंने कहा था कि एक टाइप का कीवर्ड अगर आप यूज करते हो जो यूजर इंटेंट कीवर्ड्स में से है, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। वो कौन सा कीवर्ड यूजर इंटेंट कीवर्ड था? जल्दी जल्दी, कौन सा यूजर इंटेंट कीवर्ड था चारों में? This is a commercial. कॉमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, देयर आर 4 टाइप ऑफ यूजर इंटेंट कीवर्ड्स। ठीक है, बट जो कीवर्ड आप लोगों को अपनी वेबसाइट में कंटेंट राइटिंग के टाइम पे यूज करना है, वो कौन सा यूजर इंटेंट कीवर्ड्स है? दैट इज योर Content writing इंफॉर्मेशनल। informational. information. एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट कीवर्ड्स है। ठीक है, हाँ, अब आप इंफॉर्मेशनल कॉमर्शियल या इंफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, बट इंफॉर्मेशनल वो होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, जस्ट बिकॉज हम लोग एईओ और जियो के अकॉर्डिंग समझ रहे थे उस चीज को। वैसे ही जब आप ये गूगल एड्स की एड बनाते हो, जैसे कि ये है, ठीक है, ये क्या है, गूगल एड्स की एड है, तो इसमें ज्यादातर हम लोग जो गूगल ने अभी करंट में अपने रूल्स को थोड़े से चेंज कर दिया है। प्रीवियसली आप इनमें से जितने भी आपके 5 मैच टाइप हैं, आप इन सबका यूज कर सकते थे फ्रीली, बट अब गूगल का कहना ये है कि अब हम लोग को सिर्फ ब्रॉड मैच कीवर्ड ही यूज करना है। अभी ब्रॉड मैच कीवर्ड होता क्या है, पहली बात तो ये हम ये सारे एक्सप्लेन करते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप गूगल एड्स क्रिएट करेंगे या फिर आगे हम लोग सीखेंगे, हम लोग सिर्फ ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करेंगे। उसके सिवा ना मॉडिफायर यूज करेंगे, ना फ्रेज, ना एग्जैक्ट, ना नेगेटिव, ओनली ब्रॉड मैच। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक, ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज इसका यूज जो होता है जब आप एड बनाते हैं ना, तो आप लोगों को कीवर्ड्स भी डिसाइड करने होते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली आप किन कीवर्ड्स पे अपनी एड विजिबिलिटी शो करना चाहते हो। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजर के ही हाथ में होता है कि जिस एडवर्टाइजर ने ये गोदरेज प्रॉपर्टी या जेंसार पुणे डॉट कॉम की प्रॉपर्टी खराड़ी की जो बनाई है इसने, तो उस एडवर्टाइजर ने 2 BHK फ्लैट फॉर सेल पुणे क्या किया है, सेलेक्ट किया, दैट्स वाई यहाँ पे एड विजिबिलिटी मुझे शो हो रही है। लेट कंसिडर अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, सिर्फ सिंपली पुणे को रिमूव करते हैं, डिलीट एंड एंटर। इस पे कोई एड विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ देखिए, एड्स कम हो गए, यहाँ पे नोवा प्रोजेक्ट डॉट इन आ गया, और आपका सेम वो फर्स्ट है, गोदरेज प्रॉपर्टीज वाला आपका हट चुका है वहां से। तो ये क्या होता है, ऑप्टिमाइज करता है, माइट भी अगर बॉटम में हो तो चलेगा, नहीं, सी, यहाँ पे भी सेम ऐड है आपकी, यहाँ पे भी सेम ऐड है आपकी, इसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप SEM की एड क्रिएट करते हो, तो आपको इन कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। दो हम लोगों को लास्ट 4 कीवर्ड्स नहीं यूज करने हैं, बट स्टिल आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सी, फर्स्ट आपका ब्रॉड मैच है, ये हम शेयर भी कर देंगे आप लोगों से। फर्स्ट आपका ब्रॉड मैच है। देखिए, ब्रॉड मैच कीवर्ड होता क्या है, अगर कोई भी यूजर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, फॉर एग्जाम्पल पुणे में उसका यू स्किप हो गया और उसने ऐसे सर्च कर दिया, ठीक, तो ब्रॉड मैच हेल्प करता है आपकी एड को तब भी शो करने का गूगल पे। ब्रॉड मैच क्या करेगा, उस सिनेरियो में भी आपकी हेल्प करेगा कि एडवर्टाइजर को आपका एड क्या हो, विजिबिलिटी शो हो। ये होता है ब्रॉड मैच, इसमें आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हो, बट स्टिल आपको एड क्या होती है, विजिबल होती है। जैसे कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, विमेन्स हैट है, बाय लेडीज हैट, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या कोई आप सिनोनिम या रिलेटेड सर्चेस का यूज करते हो ना, तो ब्रॉड मैच आपकी एड को दिखाता है, विच वॉज गुड, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आप जब फ्लो में टाइप करो तो आपके सारे लेटर्स या वर्ड्स क्या हो,
करेक्ट फॉर्मेशन में, मे बी वो आगे से मेरे से कितनी बार होता है, तो उसमें भी आपकी ऐड क्या हो, विजिबिलिटी शो, दैट इज नोन एज ब्रॉड मैच। ठीक, ब्रॉड मैच समझ में आया, तो हम लोग मॉडिफायर में जाते हैं। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में पहले ये बताइए, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, मूव करेंगे। हाँ, हर्षिता, विशाल, Yes, पंकज, ma'am. मंजू, सबको आए समझ में? ठीक है, चलिए। ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या होता है ना, जब भी आप अपने कोई भी टू कीवर्ड्स पे, किसी भी दो कीवर्ड्स पे आप ऐसे प्लस साइंस लगा देते हो, सी, प्लस विमेन प्लस हैट्स, समझिएगा इस चीज को। कीवर्ड पे यहाँ पे सिंबल्स में देखिए, स्पेशल सिंबल्स, नन, इसमें किसी की जरूरत नहीं होती है जब आप ब्रॉड मैच का यूज करते हो, लेकिन अगर आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर का यूज करते हो, उसका सिंबल क्या है, प्लस। जब आप दो कीवर्ड से प्लस साइन लगा देते हो, जैसे प्लस विमेन्स प्लस हैट, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप हैट और विमेन्स को कैसे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे, हम आपको चैट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है, लेट कंसिडर, मैंने यहाँ पे डाला है प्लस जैसे कि, चलिए, Ma'am, हाँ बोलिए। example is like blue, sorry, black plus top or shirt. हाँ, पैसे ले, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ब्लैक, नहीं ब्लैक भी नहीं लेते, मतलब मुझे ना एक बहुत एक्यूरेट एग्जांपल, मुझे कीवर्ड सोचना पड़े जो मतलब कंबाइन हो जाए और हर सिनेरियो से हम आपके लिए उसको ना फ्रेम कर सकते हैं। मुझे वैसे दो कीवर्ड्स चाहिए बस। अ, ठीक है, चलिए, मेंस हो गया, मे बी ये इजी ही हो, मेंस प्लस शर्ट, ठीक है। अगर मैंने इस तरह का कीवर्ड यूज करते हैं बैकग्राउंड में जब आप एड बनाओगे, ठीक, तो अगर यूजर, ये एडवर्टाइजर ने इस तरह का क्रिएट किया है, ठीक है, ये सिर्फ एडवर्टाइजर क्रिएट किया है। अब ऑडियंस जो है, ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है वो किन किन पैरामीटर्स में इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकती है, जैसे कि ये ऑडियंस को नहीं पता है कि आपकी एड कब आप ब्रॉड मैच यूज कर रहे हो या फ्रेज या एग्जैक्ट आप क्या यूज कर रहे हो, ये ऑडियंस को नहीं पता है, ठीक है, ये सिर्फ एडवर्टाइजर को पता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजर ने प्लस मेंस प्लस शर्ट किया है, तो अब यूजर कैसे सर्च कर सकता है, जैसे फॉर्मल मेन, सॉरी, मेंस शर्ट, या फिर मेंस कैजुअल शर्ट, ठीक है, या फिर मेंस टी शर्ट, तो एक अलग ही वो हो गया, टी शर्ट नहीं आ सकता, और क्या, प्लेन कलर या पेस्टल कलर्स, जो भी आपको सही लगे, शर्ट। तो सी, जब आप दो वर्ड्स को प्लस में ला रहे हो ना, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होना ही जरूरी है, इधर वो साथ में हो, इधर वो सेपरेट हो, ठीक है, बट वो वर्ड्स जो है ना, वो आपके यूजर के या ऑडियंस के सर्च टर्म्स में आना मैंडेटरी। आप उनके मिड में कितने भी, या उनके प्रीफिक्स या उनके सफिक्स में कितने भी वर्ड्स को ऐड ऑन कर दो, बट मेन शर्ट्स का आना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। समझ में, ब्रॉड मैच मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, कि आप दो वर्ड्स को तोड़ते हो सेपरेट यूज के लिए, आप उनके इन बिटवीन प्रीफिक्स या सफिक्स कैसे भी ऐड कर लो, बट वो वर्ड्स टूट भी जाते हैं या साथ में रखो, लेकिन वो वर्ड्स का आना क्या है, मैंडेटरी है, दैट इज ब्रॉड मैच मॉडिफायर।
समझ में आया क्या? मंजू, पंकज, हर्षिता, Yes, ma'am. हाँ, विशाल। Yes, ma'am. देन हाँ जी मैम। पक्का ना? ठीक है। अब आपका Yes, आता है फ्रेज मैच। तो फ्रेज आपका कुछ ऐसे आता है, डबल कोट्स में आ जाता है। मतलब अगर आपने ऐसे किया, मेंस शर्ट, डबल कोट्स में, तो इसमें थोड़ा सा इशू रहता है। वो क्या रहता है कि ऑडियंस इनको ब्रेक नहीं कर सकती। जैसे ब्रेक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर में जब आप दो वर्ड्स में प्लस साइंस लगा रहे थे, तो आप उनको सेपरेट कर पा रहे थे, ठीक है। बट जब आप फ्रेज मैच का यूज करते हैं और जब आप ये डबल कोट्स में पुट करते हैं, तो आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। आप इनके सफिक्स या प्रीफिक्स में क्या कर सकते हो, चीजों को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये, ठीक है। ये, तो आप देख रहे हो, इसके प्रीफिक्स और सफिक्स में चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। बट आप मेंस शर्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज आपका फ्रेज मैच है, ये डबल कोट्स में है। तो जब आप कोई वर्ड्स को ना डबल कोट्स में डाल देते हो, तो आप उनके प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ भी ऐड करोगे चलेगा, बट आप उन वर्ड्स को तोड़ नहीं सकते। और ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या होता है, आप वर्ड्स को प्लस साइन से ब्रेक कर रहे होते हो फॉर दी सेपरेट यूजेस। समझ में आया? ब्रॉड मैच एंड फ्रेज मैच, ये तीनों आपको स्टार्टिंग से yes, ma'am. पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैम हाँ, ऑनलाइन क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग भी हम ले सकते हैं ना, एग्जाम्पल? हाँ, क्यों नहीं ले सकते? आप ले, ऑनलाइन क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग आप ले सकते हैं, बट इनमें से आपको किस में उस कीवर्ड को पुट करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। फ्रेज मैच के लिए। हाँ, फ्रीज, हाँ, ले सकती है। ऑनलाइन क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग आप चाहो तो उसको ब्रॉड में भी रख सकते हो, और या फिर एग्जैक्ट में रखो। ओके मैम। अब एग्जैक्ट में क्यों, देखिए, अब जैसे एग्जैक्ट में क्या होता है, आपके ये बिग ब्रैकेट लग जाते हैं, स्क्वायर, ठीक है। जैसे ऑनलाइन क्लास, सॉरी, ऑनलाइन क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अरे, मेरे से वो ब्रैकेट लगना, आई एम सो सॉरी। ये एडिट हो सकता है क्या? ये, अब देखिए, जब आप इस तरह से किसी कीवर्ड को पुट करते हो ना अपने ब्रैकेट्स में, तो आप इसको फ्रेज में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, आप फ्रेज में भी रख सकते हो कि अगर मानो इन पुणे या नियर मी ऐसे किसी को ऐड ऑन करना है, तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप ब्रैकेट में इसको पुट कर देते हो कुछ इस तरीके से, तो आपके ऑडियंस को भी ऐड तभी दिखाई देगी जब वो यही सेम हूबहू ऑनलाइन क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा। ना इसके कुछ सफिक्स में ऐड होगा, ना इसके कुछ प्रीफिक्स में ऐड होगा। ये होता है एग्जैक्ट मैच। आपका एग्जैक्ट का मतलब ये कि हूबहू आपकी ऑडियंस को भी सेम चीजें टाइप करनी होंगी, तभी जाके, ना स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए ना कुछ होनी चाहिए, एक्यूरेट कार्बन कॉपी वही ऑडियंस टाइप करेगा, तभी ऐड दिखाई देगी। तो ये एग्जैक्ट मैच होता है आपका, ठीक है। नेगेटिव मैच क्या होता है, जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड विजिबिलिटी नहीं शो करनी। फॉर एग्जाम्पल, माइनस बेस्ट बेस्ट मेंस शर्ट। तो अब मुझे बेस्ट मेन शर्ट पे कोई अगर सर्च करे ना, तो मुझे अपनी एड विजिबिलिटी नहीं दिखानी, तो वो आप माइनस में रख देते हो। तो लेट कंसिडर कि आपको अपना एड बेस्ट मेन शर्ट पे नहीं दिखाना, कोई यूजर सर्च करे बेस्ट मेन शर्ट्स, तो मेरी एड उस टाइम पे नहीं किसी की दिख रही होगी तो दिख रही होगी, बट मेरी एड उस टाइम पे नहीं दिख रही होगी। तो ये होता है नेगेटिव मैच।
समझ में आया ये आपको पूरा? Yes, ma'am. ठीक है मैम सबको? प्लीज हाँ बोलिए। रिपीट अगेन फ्रेज मैच। देखिए फ्रेज मैच में देखिए, जब आप कोट्स पे पुट करते हो ना, ये देखिए डबल कोट्स में आपका है ना विमेन्स हैट, रेड कलर में आप देख रहे होंगे कोटेशंस में। तो ये क्या यस। होता है, आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि मेरा कहाँ चला गया, ये ये जब मैंने मेंस शर्ट को कोट्स में पुट किया, ठीक है, तो वो कंबाइन हो गया। मतलब आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते हो मेंस शर्ट को। आप मेंस शर्ट के पहले या मेंस शर्ट के बाद में आप कुछ भी ऐड करो चलेगा, बट फ्रेज मैच में अगर आप डबल कोट से पुट कर देते हो तो वो अलग नहीं होते, वो ब्रेक नहीं होते कीवर्ड्स। ओके समझ मैम। में आया अभी हर्षिता? जैसे कि यस। यहाँ पे लिखा है विमेन्स हैट, तो देखिए विमेन्स हैट ब्रेक नहीं हो रहा, बट आप उसके पहले प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ देखिए विमेन्स और हैट प्लस साइन में था, तो देखिए हैट्स पहले आ गए, विमेन बाद में आ गया। तो ये आप दो वर्ड को प्लस साइन में अलग करते हो, कोटेशंस में साथ में रखते हो, एग्जैक्ट में एक्यूरेट होता है, और नेगेटिव में जिसपे कीवर्ड पे ऐड नहीं दिखानी होती उनको हम लोग नेगेटिव में रखते हैं। ओके मैम, थैंक यू। पक्का समझ में आया ना? एक बार फिर से ध्यान से एक बार इस स्क्रीन को आप लोग देख लो, कुछ ऐसा डाउट लगता है तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। ओके मैम, डन। ठीक है, अब एक और चीज, ये अगर चाहो तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे कोई पूछता है कीवर्ड टाइप्स के बारे में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे टेल मी अबाउट कीवर्ड टाइप्स, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको कौन से कीवर्ड टाइप के बारे में जानना है, यूजर इंटेंट या मैच टाइप। यूजर इंटेंट कीवर्ड आपके पता है इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, कॉमर्शियल, नेविगेशनल होते हैं, ये यूजर इंटेंट कीवर्ड टाइप होते हैं। और अगर आपसे कीवर्ड मैच टाइप के बारे में कोई बोलता है तो ये ब्रॉड, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज, एग्जैक्ट और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया कीवर्ड्स के बारे में, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ पुणे सेल्स को लेकर। ठीक, अब देखिए आपकी एड विजिबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, तो थोड़ा थियोरेटिकल आ गया है। अब देखिए कौन कौन सी बिडिंग होती है, मेन थिंग पे आते हैं हम लोग। जैसे कि सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक होती है, कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने चाहिए। कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं 1% कोई, अदरवाइज इतना कोई पूछता नहीं है इसके बारे में। बट हाँ अगर याद रहेगा तो ये आपके लिए अच्छा है फॉर मतलब इनिशियल लेवल के लिए, तो बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ देखिए, सीपीसी आपका कॉस्ट पर क्लिक होता है, सीपीएम आपका कॉस्ट पर 1000 होते हैं। मतलब अगर आपके जैसे इंप्रेशन, मतलब क्या होता है, जब आप सेम ऐड को बार बार देखते हैं और बिना क्लिक किए देखते हैं तो इम्प्रेशन आपका इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप ही से 1000 हो, और भी से मानिए हम हो गए, हर्षिता हो गई, विशाल, पंकज, मंजू, ये लोग हो गए, हम लोग सब लोग कंप्लीट सेम ऐड को देखते देखते उसका 1000 कर दिए। ठीक है, तो क्या होता है, एक बिट डिडक्ट होता है 1000 के बाद। ठीक है, 800 है, 700 है, 850 है, नहीं होगा, जैसे 1000 होगा तुरंत आपका एक बजट में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये होता है कॉस्ट पर 1000 या फिर कॉस्ट पर माइल्स इसे कहते हैं। कॉस्ट पर सीपीए आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन होता है, कॉस्ट पर कन्वर्जन होता है। जब आप लीड करते हो, लीड कैंपेन्स क्रिएट करते हो, तो इसे कहते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर एक्विजिशन कहते हैं इसे। ठीक है, अब सीटीआर का फॉर्मूला आपको पता है, क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये सीटीआर का फॉर्मूला होता है। अगर आपको कन्वर्जन रेट निकालने को कोई कहता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस का हो, तो आपका कैसा होना चाहिए, टोटल कन्वर्जन, मतलब कितनी लीड्स आए। फॉर एग्जाम्पल आपको लेट कंसिडर 100 लीड्स मिले हैं, उस पे आपको 1000 क्लिक्स मिले हैं, तो कितना आपका ये हो जाएगा, आपका कन्वर्जन रेट निकल आएगा। सेम है सर्विस का भी होता है कि टोटल लीड्स, मतलब प्रोडक्ट वाले में सेल्स पे डिमांड की जाती है, सर्विस वाले में लीड्स पे डिमांड की जाती है। तो टोटल लीड्स अपॉन टोटल क्लिक्स इनटू 100।
और सेल आपको प्रॉफिट निकालना है, तो सेल जितना टोटल आपका मंथ का सेल हुआ है और कितना उसमें से आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने अगर 100 रुपीज का सेल किया है, उसमें से आपका अगर 50 रुपीज क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 50 का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका क्या होता है, सेल। तो ये बेसिक आपका जो चीज है, बेसिक फैक्टर आप बोल सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आप इसको अगर याद रखोगे तो मच बेटर है उस चीज के लिए। इसके बाद आपका आ जाता है गूगल नेटवर्क्स। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग दो नेटवर्क्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए। आपका सर्च नेटवर्क एंड आपका वीडियो नेटवर्क। ठीक है, सर्च नेटवर्क हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है, ये आपका सर्च, मेरी ऐड नहीं दिख रही इस पे हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पॉन्सर्ड ऐड तो देख ही लिया था, तो स्पॉन्सर्ड ऐड एक आपका सर्च नेटवर्क हो गया। अब आते हैं हम लोग यूट्यूब वाले पे। यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा। लेट कंसिडर, अभी कुछ भी हम लोग ये चला लेते हैं, ये ओपन करते हैं। ठीक है, म्यूट। ये जो एड अभी आपकी आ रही है ना, ये अभी होगी आपकी यूट्यूब एड। ठीक है, जिसको आप स्किप कर सकते हो। ये आपने स्किप किया, आपका स्टार्ट हो गया। अभी ये जो एड है, ये भी आपकी क्या है, एड चल रही है। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड लिखा हुआ है ना, इस जगह पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड 2 of 2 लिखा हुआ है। See, ये तो ये आपकी स्किप, ये यूट्यूब एड्स होती हैं आपकी। हम लोग इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे कि कैसे ये क्रिएट की जाती है। तो इस ऐड के बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग सर्च इंजन ऐड कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में भी जानेंगे। और सी, यूट्यूब वीडियो नेटवर्क ऐड आपकी सिर्फ यूट्यूब पे दिखती है। सर्च नेटवर्क ऐड आपकी गूगल सर्च इंजन पे दिखती है। डिस्प्ले ऐड भी हम आपको शो कर देते हैं, दो हम लोग इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बट हाँ, इसकी ऐड कहाँ दिखती है वो हम आपको दिखा देते हैं, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और कोई डिस्प्ले ऐड करना नहीं चाहता। मोस्टली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे दिखती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मार्कर, हाँ, ये बैनर एक आपका ऐड था। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो दिख रहा है, ये आपका एक ऐड है। ये यहाँ पे कृतिक सनन जहाँ पे बनी है, ये इनका क्या है, एक ऐड है। तो दिस इज नोन एज दी डिस्प्ले ऐड। तो डिस्प्ले ऐड जो होती है आपकी, कहाँ पे अपनी ऐड विजिबिलिटी शो करती है, सबसे पहली बात तो ये टॉप पे शो करती है आपकी ऐड विजिबिलिटी। आप बॉटम में इस ऐड को नहीं देख सकते, ये सिर्फ टॉप पे दिखाई देती है। और दूसरी, जो भी ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं उन पे दिखाई, ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, एक आपका ब्लॉगिंग आर्टिकल साइट है, तो ये यहीं पे ऐड दिखती है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो तरह की ऐड के बारे में सीखेंगे, आपकी वीडियो एंड सर्च नेटवर्क एड्स के बारे में। फिर आपका यहाँ पे कॉपी एक्सटेंशन आ जाता है, कि जब अपनी एड्स को बनाते हैं तो आपको हेडिंग, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको पुट करना क्या होती है, मैंडेटरी होती है। अब एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं। टेक्निकली हमारे पास मल्टीपल एक्सटेंशंस होते हैं, बट ऐड में हम लोग 3 टाइप ऑफ एक्सटेंशंस यूज करते हैं, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशन। 3 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन इन गूगल एड्स, उस वो भी किस में, कौन सी एड में, सर्च इंजन मार्केटिंग में। फर्स्ट इज साइट लिंक, ठीक है, एक्सटेंशन। Second is call out extension and third is call extension। ये नोट डाउन कर लेना प्लीज आप लोग पहले, तब उसके बाद जब हो जाएगा तो मुझे बोलिएगा, तो हम कंटिन्यू। इसके आगे एक्सटेंशन जरूर लिखिएगा, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, ये जरूर लिखिएगा। हम्म, हम तब तक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सर्च करते हैं।
हो जाएगा तो मुझे प्लीज एक बार बोलिएगा ना, अगर ये नोट डाउन हो जाएगा आप लोगों का। अब नहीं दिखेगा। कोई ना। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। चलिए हम ऐसे सर्च करते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, जो इमेज मैंने ओपन किया है आपके सामने, ये इसे कहते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। जैसे हाउ गूगल एड्स वर्क, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये आपका कहलाता है साइट लिंक एक्सटेंशन जब आप अपनी एड बनाते हो तो। ठीक है। ये साइट लिंक एक्सटेंशन हेल्प कैसे करता है? जब भी आप अपनी कोई एड की हेडिंग और डिस्क्रिप्शन देते हो, और उसके मेन फीचर्स, जैसे कि हम लोग स्कीमा मार्कअप बनाना सीखे थे ना, कि रिव्यूज का और कैसे क्रिएट करते हैं, उसी का एड वर्जन होता है साइट लिंक एक्सटेंशन। तो इसमें आप ये बताते हो कि आप कितना जल्दी अपनी एड अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, या आप किस चीज का सेल कर रहे हो, या ऑडियंस को आपके बिजनेस से किस चीज से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग साइट लिंक पे पुट करते हैं। ठीक है। कॉल आउट एक्सटेंशन आपका कुछ कंटेंट के अंदर रहता है, मतलब सी, ये जो हाँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ कॉल आउट एक्सटेंशन। क्रिएट करना भी हम आपको सिखाएंगे ये, बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे इस जगह पे, तो ये आपका अरे यार, ये आपका कॉल आउट है। जैसे ये फ्री शिपिंग, देन डॉट, देन 24/7 कस्टमर सर्विस, देन डॉट, देन प्राइस मैचिंग। तो ये आपका होता है कॉल आउट एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर में होता है। ठीक। फिर आपका आता है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन वैसे सेलफोन में भी आपने देखा होगा, और यहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। सी, ये जो आप ऐड देख रहे हो ना, इसे कहते हैं कॉल एक्सटेंशन। ये कॉल एक्सटेंशन होता है, ये कॉल एक्सटेंशन होता है। और अगर आपको कंबाइंड पैकेज में देखना है तीनों को, तो ये है। अगर थोड़ा सा भी, अगर आप, वैसे तो बहुत छोटा है, स्टिल ये छोटा ही है। सी, ये आपका होता है साइट लिंक। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉल एक्सटेंशन आ जाता है, और इसी में कॉल आउट। वैसे हम आपको इसको प्रैक्टिकली बताते हैं, इतना इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ, ये आपका एग्जाम्पल होता है इसका, साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशन का। तो ये हम आपको प्रैक्टिकली भी शो करके बताएंगे कि अब ये तीनों एक्सटेंशन यूज क्यों करते हैं। उसका रीजन है कि अगर आपको अपनी एड का सीटीआर इंक्रीज करना है, सीटीआर मतलब ज्यादा ज्यादा क्लिक्स आए, ज्यादा ज्यादा लोग रीच करें आपके साइट पे, इंगेज हो, तो वो आपका सीटीआर इंक्रीज करता है। तो अगर आप साइट लिंक एक्सटेंशन का यूज करते हो, स्पेशली साइट लिंक एक्सटेंशन का, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एड का सीटीआर रहता है वो अप टू 10% तक जा सकता है। तो सी,
एक्सटेंशन यूज करने का प्रॉफिट क्या होता है कि आप 15% तक जा सकते, हम 10 ही बोले बट आप 15% तक जा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी एड का जो परफॉर्मेंस होता है वो और बेहतर हो जाता है, और आपकी एड की जो रीचेबिलिटी होती है वो ऑडियंस तक और बेहतर तरीके से पहुंचती है, और ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा क्लिक्स आपकी एड पे आने स्टार्ट हो जाते हैं विथ प्रॉफिटेबल थिंग। ठीक है, तो ये आप एक्सटेंशन का यूज करने का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आया क्या हर्षिता, मंजू, आप लोगों को, पंकज? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए हाँ प्लीज। हाँ हाँ, हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, आपके 3 टाइप ऑफ साइटलिंक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। साइटलिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन एंड कॉल एक्सटेंशन। मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको तीनों का ना वो कंबाइन वैसा दिखाना प्रेफरेंस ज्यादा रखते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे ना हम तीनों का वो मिक्स इमेज ढूंढ देते हैं। साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल एक्सटेंशन, इमेज। पहले ये देखते हैं इसमें है क्या। ये आपको इमेज अपलोड्स वाली विजिबल है क्या, ये वाली जो है इमेज आपको, थोड़ी बहुत भी? यस मैम। यस हाँ, मैम। थोड़ा सा बस आप लोग मतलब कोऑपरेट करिएगा। वैसे तो हम प्रैक्टिकल में आपको इसका वो दिखाई देंगे, बट यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्शन है ना आपका, जो ये वेक्टर्स वाला सेक्शन है, ये आपका साइट लिंक का होता है। साइट लिंक एक्सटेंशंस हम लोग लिंक के साथ, क्लिकेबल लिंक के संग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आप वेक्टर पे क्लिक करोगे तो आप वेक्टर वाले पेज पे रिडायरेक्ट करोगे। अगर आप बिकेम अ कंट्रीब्यूटर पे क्लिक कर रहे हो तो आप उस पे पेज पे रिडायरेक्ट करोगे। ये क्लिकेबल्स होती है साइट लिंक आपकी। ये बनाते क्यों है, इसका रीजन ये है, आप अपने बिजनेस के ना कोर थिंग्स को बताते हो, ठीक है, कि मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा किस चीज में स्पेशलिटी रखता है, जिससे कि ऑडियंस को अट्रैक्शन आपसे हो। अगर मानिए हम डिजिटल मार्केटिंग की एड बना रहे हैं, तो मेरा मोर स्पेशलिटी क्या होगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएं, कि हम आपको गूगल सर्टिफिकेशंस देंगे, या फिर हम आपको एसईओ का सेपरेट कोर्स कराएंगे, या फिर हम आपको प्लेसमेंट्स दिलवाएंगे। ये आपके साइट लिंक्स बन सकते हैं, जिससे कि जो भी स्टूडेंट को वो कोर्स करना होगा, एट लीस्ट इधर वो कन्वर्ट हो ना हो, वो उसका लुकआउट है, बट एट लीस्ट वो आपके वेबसाइट पे जरूर रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, अगर उसको सिर्फ एसईओ सीखना होगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ एसईओ वाले साइट लिंक पे माइट भी पॉसिबल वो क्लिक करके आ सकता है, माइट भी वो आपके पेज पे भी क्लिक करके, मतलब एड पे भी क्लिक करके आ सकता है। तो साइट लिंक में आप अपने कंपनी की प्रॉफिटेबल चीजों के बारे में बताते हो, और वो चीजें जो आपको लगती है कि कस्टमर आपसे ज्यादा इंटरेक्ट हो सकता है, वो साइट लिंक पे आती है। साइट लिंक आपकी क्लिकेबल होती है, आप कितने भी बना सकते हो, 2, 4, 6, कितने भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। साइट लिंक समझ में आया क्या होता है? हाँ, मंजू, हर्षिता, बाकी आप लोग को, क्रिश? यस मैम। ठीक है। और कॉल आउट जो होता है ना, वो आपके ये जो आप देखते हो ना डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर हो लिखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग डिस्क्रिप्शन क्या लिख सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, अब हम लोग कॉल आउट क्रिएट कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, प्लेसमेंट, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, लेट कंसिडर बहुत लोग ईएमआई पे भी कोर्स लेते हैं, तो नो कॉस्ट ईएमआई कोर्सेज। तो ये आपके क्या हो गए, कॉल आउट एक्सटेंशंस हो गए, जो आपके वेब बिजनेस को बुलेटिन पॉइंट्स में या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो वो भले 1, 2, 3, 4 में नहीं रहते हैं, बट वो कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे रहते हैं, जैसे आपने सीओडी लिख दिया, देन डॉट, देन ऑनलाइन डिलीवरी, देन डॉट, देन नो कॉस्ट ईएमआई, देन डॉट। तो ये कुछ इस तरीके से आपके कॉल आउट एक्सटेंशन आपके डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब होते हैं। ये समझ में आया क्या कॉल आउट एक्सटेंशन आप लोगों को?
Yes, ma'am. पक्का? मतलब इसमें हम एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम लाइव एग्जाम्पल दिखा, बट वो मेरे में शो ही नहीं कर रहा है। एंड कॉल वाला एक्सटेंशन वही कि जो आप इमीडिएट कॉल कर सको किसी को भी। इमीडिएट कॉल जैसे हम लोग फोन नंबर पे जाते हैं ना, कॉल कर लेते, साइट पे गिवन रहते, तो वहाँ पे कॉल एक्सटेंशन होते हैं। जैसे ये आपका क्या होता है, कॉल। वेबसाइट में आपका कॉल एक्सटेंशन ऐसा दिखता है, सेल फोन में आपका कॉल एक्सटेंशन ऐसा दिखता है। तो ये आपका कॉल एक्सटेंशन होता है। अभी समझ में आया क्या? कॉल आउट देखिए, हम सेपरेट भी एक बार दिखा देते हैं आपको, ये यहाँ पे गिवन है। सी, जैसे ये फ्री शिपिंग डॉट 24/7 कस्टमर सर्विसेज डॉट प्राइस मैचिंग डॉट, ये कहाँ आ रहा है आपका? ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो कॉल आउट हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी विजिबिलिटी शो करता है। क्लियर है ना ये चीज आप लोगों को? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कुछ नहीं मैम। समझ में नहीं आया? यस मैम। आया ना? ठीक है। तो यहाँ पे आपका थियोरेटिकल ऑफिशियली कंप्लीट होता है, हम लोग प्रैक्टिकल पे स्विच करेंगे। बट आप में से कोई लैपटॉप पे अभी है क्या? मुझे एक बार फिर से ट्राई करना है अकाउंट क्रिएशन का। यस मैम। श्रेय करिए ना हर्षिता, प्लीज, हम स्टॉप करते हैं। ठीक है। अभी हर्षिता आप गूगल एड्स पे जाओ, मतलब सॉरी, गूगल पे जाओ और सर्च करो आप गूगल एड्स। एक बार आप फिर से रीशेयर में, मुझे तो आपका वो नहीं दिख रहा। हाँ, क्रोम पे आपको जाना है। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग हैं। एक बार फिर से स्टार्ट करें क्या हर्षिता हम लोग? मे बी क्रिश और विशाल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक बार आप न्यू टैब पे ना जाकर फिर से वो कर लीजिए। ओके मैम। हाँ। सी, क्रिश और मंजू, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना जो हर्षिता परफॉर्म कर रही हैं। गूगल पे जाइए, गूगल एड्स को सर्च करिए। हाँ, फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगा उस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप कर दो, वैसे भी वो गूगल का ही है। देन स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। हम्म। इसके बाद ना आप अपना वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पुट कर दीजिए। जो भी आपने वो वर्डप्रेस पे बनाई थी ना वेबसाइट, वो वाली वेबसाइट का लिंक आप अपने यहाँ पे पुट कर दो। 1 सेकेंड मैम। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मुझे तो याद भी बुक मार्क किया था क्या आपने? नहीं। एक बार आप न्यू टैब पे जाइए, एक न्यू टैब ओपन करिए, और वहां देखिए बुक मार्क के ऑप्शन में कहीं आपको मिल जाए। नहीं, यहाँ नहीं हर्षिता, वहाँ जो ये 9 डॉट्स है ना, वहां देखिए ऑल बुक मार्क लिखा हुआ है। वहां लिखा है ना 9 डॉट्स के ऊपर, देखिए ऑल बुक मार्क का ऑप्शन, एच के नीचे। हाँ, वहां देखिए आपका है क्या? देखिए कस्टमाइज होम पे क्लिक करिए। हाँ,
ठीक है, अभी आप एक काम करो, क्रॉस करिए वहां से हर्षिता, लेफ्ट साइड पे देखिए क्रॉस है। हाँ हाँ, वंडरफुल। फिर से क्लोज, हाँ। अभी देखिए वहां माई ब्लॉग का साइन दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आपके, विजिट साइट है, क्लिक करिए। अब इसका यूआरएल कॉपी कर लीजिए ऊपर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके वहां पे कंट्रोल बी। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करिए इसको, नेक्स्ट करिए। स्क्रॉल डाउन करके स्किप, हाँ, फिर से स्किप करिएगा, करिए स्क्रॉल, कुछ नहीं करना है, स्किप करिए वापस से। हाँ, लीव कैंपेन क्रिएशन, हाँ, इंडिया करेंसी, ठीक है, कंटिन्यू, करेक्ट है आपका। कोई बात नहीं, ठीक है। और स्क्रॉल करिए, करते चलिए, एकदम बॉटम में आइए, वहां आई अग्री पे क्लिक करिए एक बार, आई अग्री, हाँ, गूगल टर्म्स, यहाँ नो पे क्लिक करिए। हाँ, एक बार, एक बार टॉप पे जाइएगा, मुझे थोड़ा सा एक बार देखना है, स्लोली। ये जो पेमेंट मेथड है, यहाँ पे क्या प्लस साइन दिया है कहीं पे? ये क्लिकेबल है क्या, ये पेमेंट मेथड वाला ऑप्शन? नहीं है, यस, नहीं है। नहीं है ना? ओके, अब स्क्रॉल डाउन करिए, सबमिट करिए एक बार। ठीक है, कैंसिल करिए इसको। ठीक, अभी एक बार टॉप पे जाइए वापस से, ये हो गया, ऑफर कोड नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है आपका, और स्क्रॉल करिए, अभी भी स्क्रॉल डाउन और करिए, सबमिट पे क्लिक करिए एक बार वापस से। ठीक है, क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करिए। एक बार इसको फिल करिए, मतलब आपके वेबसाइट का नाम क्या था, हर्षिता करके था ना? अ, हर्षिता ही आपने लिखा था, हाँ, सिर्फ हर्षिता लिखिएगा वहां पे, और कुछ मत लिखिएगा। जाइए ऑर्गेनाइजेशन नेम में हर्षिता पुट करिए। ठीक है, नीचे लीगल नेम आ गया, स्ट्रीट एड्रेस बेसिक डालिएगा, फुल एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप एरिया या लोकेलिटी वाइज भी डाल सकती हैं। हाँ, एक बार बस ऊपर से नीचे देख लीजिए, कुछ ब्लैंक तो नहीं बचा है ना बॉक्स? कंप्लीट है, ठीक है, अब इसको क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, अब इस पेज को स्क्रॉल अप करिए, अभी पेमेंट वाले पे क्लिक करिएगा, ऐड पेमेंट मेथड है ना, हाँ, क्लिक करिए, यहाँ पे पे विथ नेट बैंकिंग करिएगा, और अमाउंट पे जाइए, ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड पे जाइए, क्लिक करिए, 500 रुपीज अभी के लिए लिख दीजिए, मिनिमम 5, जस्ट, एंड कंटिन्यू। ठीक, आई अग्री पे क्लिक करिए, आई अग्री टर्म्स पे, नो पे क्लिक ही है, और स्क्रॉल डाउन करिए, सबमिट करिए अब। प्लीज क्रिश और मंजू देखिएगा, अगर हो फुल हम चाहते तो हैं, स्क्रॉल अप करिए, कुछ आ रहा है क्या एरर? नहीं, फिर से सबमिट पे क्लिक करिए,
बन गया। कंटिन्यू पे क्लिक करिए, योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इज कंपनी, ये वाले ऑप्शन में एक बार मुझे पढ़ने दीजिए। ये वाला ऑप्शन मेरे लिए थोड़ा सा न्यू है, एक सेकंड रुकिएगा ना हर्षिता, मुझे इसको एक बार रीड आउट करने दीजिए। इधर ऑर्गेनाइजेशन, नोट दैट द प्रूफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और सेलेक्ट नीड टू सबमिट योर प्रूफ। प्रूफ तो नहीं करना, डिसमिस करिए इसको, रीलोड मत करिएगा अभी, डिसमिस करिए। um, ये हो गया आपका। देन नो इफ यू वांट ऐड क्रिएटिव, और इस पे ठीक है, ये इस पे नो पे ही क्लिक, नो करिए, नो पे क्लिक करिए एक बार। अ, एक मिनट, एडवर्टाइजमेंट अदर ब्रांड्स एंड प्री कन्वर्जन, हाँ नो पे क्लिक करिए। उसके बाद फिर ऑप्शन दे रहा है पे बंद करने वाला ना, तो ईच एडवर्टाइजमेंट, इसमें यस पे क्लिक करिए। यस वी पे एड डायरेक्टली, ठीक है, हम लोग को नहीं पहले से इनवॉइस चाहिए। और बाय क्लिक, ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करिए, सेव एंड कंटिन्यू करिए। बन गया आपका ये डमी अकाउंट। आप सब पैसा, मतलब पैसे का आपके पास आएगा, बट उसको इग्नोर करिएगा आप बार बार, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट बन चुका है। कृष्ण मंजू, यही चीज ना, प्रोसीजर जो भी हर्षिता का है ना, यही आप लोग भी फॉलो करना अकाउंट क्रिएशन में। या फिर अगर Okay. आप में से कोई है Okay, ma'am. तो एक बार फिर से भी ट्राई कर सकते हैं। कोई है आप में Okay. से, मंजू या कृष, लैपटॉप पे अभी? Sure, ma'am. हाँ, आप स्टॉप कर लो हर्षिता। मंजू, कृष, आप में से कोई है क्या लैपटॉप के थ्रू? तो हम चाह रहे कि एटलीस्ट एक का और बन जाए अकाउंट। No, मेरा तो ma'am. नहीं। Can I try for this? विशाल, अच्छा ठीक है, आइए विशाल आप। आप भी इस बार इंडिया चूज कर लेना। अब मुझे वहां का नहीं पता कि वहां पे गूगल पे कोई रूल है कि, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए उस साइड में। ठीक है, चलिए। विशाल आइए, गूगल एड्स क्रोम पे जाइए और गूगल एड्स सर्च करिए। हाँ, साइन इन। Test live URL. हाँ, स्टार्ट नाउ। ये डमी अकाउंट के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा आप लोग, क्रिश और मंजू एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा इजी रहेगा। पेमेंट का बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, बट इग्नोर करिएगा उसको, इतना कुछ वो नहीं है। ओ, एक सेकेंड। आपका वो, आपको ये इमेज वाले से ही करना है कि आपको वो फोटो वाले से करना है? हम यहाँ पे से करेंगे। यहाँ आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको वो फोटो, आप लास्ट टाइम में कुछ फोटो करके आपका यूआरएल था ना। या मैम। हाँ, यू कैन पुट दैट यूआरएल। আচ্ছা, ওইটা কি আমাদের ফটো রিটাচিং সার্ভিস না? ফটো রিটাচিং সার্ভিসের ইউআরএলটা দাও তো। হুম, ফটো রিটাচিং সার্ভিস নতুন ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা। এটা কি ইউআরএল? ইজ দিস? हम्म, ওকে ম্যাম। स्क्रॉल, हाँ स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। विशाल, डिलीट करिए इस अकाउंट को। आप वहाँ पे गो टू योर ईमेल आईडी एंड डिलीट दिस पर्टिकुलर अकाउंट। गूगल एड्स पे राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखिए, ब्लैक कलर का आइकन है वहाँ पे। हाँ, जस्ट डिलीट इट।
remove it. Again, sign in, leave. Click on new Google Ad account. Click on create your first campaign. If you want to change your URL, remove this and put your photo. You uh, just remove it. Don't need to type. Okay, just type it. Photo retouching. Services. Service. ठीक है. You click on next. Um, Scroll down. Click on next. Skip. Skip. Again skip. Leave campaign creation. Your currency is US dollar, no? Huh. Uh, First two things are right. Bangladesh and okay. आप चेंज कर रहे हो क्या करंट कंट्री और वो मतलब इफ यू Mhm. वांट यू कैन बट Okay. मुझे अदर कंट्री का रूल्स भी नहीं पता है Or either currency. either you took Bangladesh or you took India means these two for the dummy account US You. dollar हाँ US dollar continue um, one second uh, uh, scroll down करिए just scroll down uh, we want to personal guidance with Google Ad account study no second option would be no then submit okay just fill this payment profile page for example organization name your photo retouching service हाँ touching service then street address you can put your locality or something no need to Stay. put the whole address but yes okay done then create नो थैंक्स कर दीजिए वहां पे अभी के लिए तो ठीक है स्क्रॉल अप करिए एक बार सबमिट क्लिक ऑन सबमिट अगेन ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैंसिल इट स्क्रॉल अप करिए विशाल wait. Just click on add payment method plus sign there would be a plus sign on add payment method huh you are only getting the add credit or debit card option I need net banking wala option अच्छा just click on add credit or debit card I'm just trying मतलब आपका कुछ deduct नहीं no cancel it आप कंट्री इंडिया ले सकते हो बांग्लादेश में भी आपके साइड में सिर्फ नेट बैंकिंग का नहीं वो ऑप्शन ले रहा है गूगल तो हम लोग ये चेंज कर ले चलेगा आपको Okay, ma'am. ओ, हाँ तो Ma'am, जस्ट सेलेक्ट can इंडिया I put here USA, Bangladesh, ne? यूएसए जस्ट ट्राई Or इट UK? वन इफ पॉसिबल जस्ट ट्राई इट वंस USA. ये यूनाइटेड हाँ US. यूके और यूएसए हाँ US. टाइम न्यूयॉर्क टाइम्स आ गया ये जस्ट क्लिक क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल create new payment profile हाँ just click on this organization हाँ name is your photo retouching zip code आपको याद है आप this is the Bangladesh zip code means आपकी organization का zip code वहाँ का Ma'am, UK में है. This is the code of UK. okay just select this Then I need to change change the
the A UK country. country. Yes, you have to change the country. If it's UK zip code, cancel it and select UK. Just above, huh? Now create new profile. Just fill this. Organization name आपका हो जाएगा वो photo retouching services. Okay, ma'am. The field must be 60. It's exceed the 60 character. The postal code format is not correct. Correct na এটা? এটা correct না? এটাই তো আছে আমাদের। The postal code format is not recognized. Ma'am, coastal code, I think this Postal is code means zip code, pin code. एरिया कोड एरिया वाइज कोड होता होगा ना, तो दैट वुड बी योर पोस्टल कोड. ओके. ma'am, हाँ, I जस्ट करेक्ट इट वन, चेक इट वंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. কোথায় আছে ভাই? এখানে না? এই রে ভাই, লোড হইতে এত সময় লাগে একটা দিন। এই যে কন্টাক্ট কই এখানে। Ma'am, look, there is a UK office and United. This is the location. सी जिप कोड मींस ना विशाल, जैसे सी द बांग्लादेश हेड ऑफिस पिन कोड इज 5000. Hmm. So that, yeah, just copy that code. S Uh, 140BH. Yes, just I know copy this it. is the code. This is not a postal code. This is not a postal code. Is this postal code? Okay, just copy it. This postal code, na, you just copy that particular thing, huh? And paste it over there. Wait, wait. Okay. See the postal code format. I think so, na. It you should select India. That would be more means benefit for you, because might be possible in other countries Google had different rules. So might be possible they were not recognizing this postal code. Hmm. तो जस्ट सेलेक्टेड इंडिया, और आप प्रायुक्त का वो ले सकते हो, पिन कोड ले सकते हो. India. हाँ, इंडिया. जस्ट क्रिएट न्यू अकाउंट पेमेंट मेथड प्रोफाइल. ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अभी के लिए प्रायुक्त पुट कर दो, या फिर अपना नाम पुट कर दो वहां पे. दैट वुड बी मच बेनिफिशियल. हाँ. हाँ. और प्रायुक्त का आपको, आप जस्ट न्यू टैब पे जाओ एंड प्रायुक्त या स्ट्यू वैली सर्च करिए वहां पे, न्यू टैब पे, सिंपली, नॉट ऑन द प्रोफाइल. हाँ, सिंपली प्रायुक्त. हाँ. See, on the right hand side there would be na address and the zip code 122007. हाँ, just copy that code. हाँ, and paste on the pin code section. Paste on the pin code section. Yes. Uh, Street address, just go. Took old DLF colony. Took old DLF colony. हाँ, just इतना ही. हाँ, copy and paste it there. City would be Gurugram. Either you can copy from there only. Gurugram. See. Gurugram. Yes. हाँ, Gurgaon, Gurugram, same. And state would be Haryana.
Haryana. Gurgaon is the old name and Gurugram is the updated version of Gurgaon, Haryana. Haryana. Yes. Haryana And is the city, it's uh state. yes. Just click Gurgaon is on, the. yeah, city. Just click on create. No thanks. Then add payment method. Click on add payment method and plus sign. हाँ, विशाल आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है. लैपटॉप में प्रॉब्लम है मैम. आपको नेट बैंकिंग नहीं दे रहा है वो. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. आपको नेट बैंकिंग नहीं दे रहा है. हम इरिटेट हो जाएंगे ऐसे. सिर्फ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आपको दे रहा है. आई वांट नेट बैंकिंग. Scroll down, just again click on add payment method. Let's see. Hopefully. नहीं दे रहा आपको नेट बैंकिंग. आई वांट नेट बैंकिंग. आई एम सॉरी. आपको क्रेडिट एंड डेबिट दे रहा है जो मुझे ऐड नहीं करवाना है. आई एम सो सॉरी. ओके मैम. एक काम करते हैं विशाल, अगर इन केस अगर मेरे से कोई एक डमी अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो हम आपको उसमें अलाउ कर देंगे. इन केस अगर मेरे से क्रिएट हो जाता है तो. अदरवाइज हम पूछते हैं कुछ और ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है. ओके मैम. ठीक है ना. बिकॉज अगर सी इफ एड पेमेंट मेथड में आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन देते हैं ना तो होल प्रोसीजर इज जस्ट रेप्लिका ऑफ हर्षिता, जैसे हर्षिता ने परफॉर्म किया है. बट आपके में सिर्फ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ही दे रहा है. तो मुझे नेट बैंकिंग मेरे लिए ज्यादा इजी पड़ता. बट ठीक है, लेट्स सी. क्रिश एंड मंजू, आप लोग को प्रोसीजर समझ में तो आया ना, हर्षिता वाला भी एंड Yes, मोस्ट ma'am. ऑफ, है ना. तो हाँ एक बार जी मैम. क्रिएट करिएगा नेक्स्ट क्लास तक. और प्लीज ठीक है. मुझे बताइएगा, अगर होपफुली आपका भी बन जाए फिर मेरा भी, तो विशाल का हेल्प हो जाएगा उसमें. ठीक है ना. Okay, ma'am. चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय. Bye, ma'am. मैम, बाय, थैंक बाय यू. बाय, वेलकम, बाय, टेक केयर.